We were doing an illustration of rectification of errors. Let's continue that, or rather, let's restart that because we had just done 2 entries. So we'll begin that again. Are these 2 screens visible? Prishita, are these screens visible? There only one. Only one is visible. Okay, let me try again. Yes. So now it's visible. Okay, both are visible now. Yes, sir. Okay, let's start this question from the beginning. Read the question, Prishita. Past journal entries to rectify the following errors on 31st March 2020. Also prepare suspense account. So you must have prepared a format of journal and around a 5-6 lines format of suspense account, format of ledger, right? Yes, sir. Okay. Now read the question further. Trial balance debit side excess by rupees 65,000. The difference posted to suspense account. So which side of suspense account the difference must have been posted? The credit side. Because credit side was short. Debit side excess means credit side short. तो सस्पेंस अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 65,000, राइट? Yes, sir. देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, फर्स्ट एरर क्या दिया हुआ है? Purchased goods for rupees 30,000 plus 5% IGST. GST amount posted on credit side in input IGST account. ओके, तो 30,000 का 5% कितना हुआ? The 1,500. 1,500, which should have been posted in input IGST account on which side? On debit side. But wrongly it has been posted on credit side. So now how do we rectify this? So we will debit input IGST account with doubling the amount. That is Yes, 3,000. very good, with double the amount. So input IGST account debit 3,000 to suspense account 3,000. Rectification of posting on wrong side. Clear? Yes, sir. Now, how will the posting of this entry go in suspense account? On which side? Sir, on credit side, amount 3,000. Yes, and in particulars we will write. By input IGST account. Yes, लिख लो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डेट इज 2020 मार्च 31, बाय इनपुट IGST अकाउंट 3,000. Sir, written. Good. Read the second one now. Sales book undercast by 20,000. So how to rectify? The suspense account debit to sales account 20,000. यस, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है जो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट होता है. सेल्स बुक इज अंडरकास्ट मींस टोटल शॉर्ट. सो मींस सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट जाना था वो कम अमाउंट गया है. So now we need to credit sales account by this much amount. So suspense account debit 20,000 to sales account 20,000. Rectification of sales book under cast. इसकी posting suspense account में on which side will it come? Debit side by writing to sales account 20,000 amount. Yes, excellent. On debit side we will write to sales account 20,000. लिख लो.
Sir, written. Okay. Third error is sales return book. Sales return. Yes, read it. Sales return book overcast by rupees 2000. सेल्स रिटर्न का कैसा बैलेंस होता है? Debit balance. डेबिट बैलेंस, और वो ओवरकास्ट यानी ज्यादा हो गया है टोटल. सो व्हाट टू डू नाउ? Sir, we will credit sales return account. Very good. We will credit sales return account. Is any other account affected by this transaction? By this error? Sir, suspense. No other account is affected, so suspense account will be debited. Suspense account debit 2000 to sales return account 2000, rectification of sales return book overcast. Clear? Yes, sir. लिख लो. Sir, written. Now, how will this posting come in suspense account? On which side? Sir, on debit side with amount 2000 and writing to sales return account in particulars. Very good. लिख लो. Suspense account में debit side पर to sales return account 2000. Sir, written. Good. Read the next one. Goods worth rupees 10,000 purchased from Misha not recorded. रिकॉर्ड ही नहीं हुए, मतलब एंट्री ही नहीं हुई. तो अब हम वो एंट्री कर देंगे जो होनी चाहिए थी. व्हाट शुड हैव बीन द एंट्री? Purchases account debit to Misha 10,000. वेरी गुड. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिशा 10,000. रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग. क्लियर? Yes, sir. लिख लो. Sir, written. ओके. नाउ इसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में जाएगी क्या? No, sir, because suspense account is not involved here. Absolutely. Because suspense account is not involved in this entry, so posting of this entry will not go in suspense account. क्योंकि इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ना तो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है. ठीक है. सीधे अब हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे, एंट्री पे, नेक्स्ट एरर पे. पढ़ो. Repairs of machinery for rupees 18,000 debited to machinery account. यस. इसमें क्या होना चाहिए था और क्या हो गया? सर, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना था बट मशीनरी अकाउंट को कर दिया. यस. रिपेयर्स टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश हो गई है. तो अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. एब्सोल्युटली राइट. repairs account debit to machinery account 18,000. Rectification of wrong account debited. Clear? Yes, sir. इसकी पोस्टिंग जाएगी सस्पेंस अकाउंट में? No. नहीं, because suspense account is not involved in this entry also. लिख लो ये. Sir, written. Good. Read the next error. Goods worth rupees 10,000 sold to Pratham credited to his account as rupees 11,000. So what is the error?
सर प्रथम को डेबिट करना था बट वो क्रेडिट हो गया तो हम उसे डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। हाँ, लेकिन ध्यान से अमाउंट देखो, कितने के गुड्स हमने सेल किए थे और कितना अमाउंट पोस्ट हुआ है। सर तो 21,000 से डेबिट कर देंगे। यस, एक्सीलेंट। हमने गुड्स सेल किए 10,000 के प्रथम को, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी प्रथम टू सेल्स 10,000। ठीक है, क्रेडिट सेल है क्योंकि नाम दिया हुआ है, कैश वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। सो प्रथम टू सेल 10,000 होना चाहिए था। एंट्री हुई होगी इसकी कौन सी बुक में? सेल्स बुक। सेल्स बुक में, वेरी गुड। वहां से पोस्टिंग जानी चाहिए थी इन द लेजर अकाउंट ऑफ प्रथम ऑन डेबिट साइड एज टू सेल्स अकाउंट 10,000, बट इट हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। डेबिट की जगह एक तो क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स बुक के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, क्रेडिटिंग में मिस्टेक हुई है, इसका मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग ठीक हो चुकी, सेल्स अकाउंट इज करेक्ट। तो प्रथम के अकाउंट में सिर्फ एरर है, डेबिट में 10,000 होना चाहिए था लेकिन प्रथम के अकाउंट में क्रेडिट में 11,000 आ गया है। आई रिपीट, प्रथम के अकाउंट में डेबिट में 10,000 आना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं, उसकी जगह क्रेडिट साइड पे 11,000 आ गया। सो नाउ टू cancel the effect of this 11,000 wrong credit, we will have to debit his account with 11,000 and also 10,000 should have been debited to his account, तो वो भी हमें डेबिट करना है। तो टोटल हमें प्रथम के अकाउंट को 21,000 रुपीज से डेबिट करना है। So the entry becomes Pratham debit 21,000. But since no other account is affected, तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। Yes, suspense account. To suspense account 21,000. Rectification of wrong amount posted on wrong side. Clear? यस सर। सर रिटर्न। गुड। इसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में जाएगी या नहीं? यस सर, ऑन क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्योंकि सस्पेंस को हम क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय प्रथम 21,000। सर रिटर्न। गुड। रीड द नेक्स्ट एरर। A check of rupees 32,000 issued to Anirudh, not posted to his account. A check has been issued to Anirudh, तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में हुई होगी? सर जर्नल प्रॉपर। जब हम चेक इशू करते हैं तो अमाउंट बैंक से जाना होता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई होगी। ठीक है, ऑन विच साइड? सर ऑन क्रेडिट साइड। ऑन क्रेडिट साइड, यस। वहां पे हमने लिखा होगा बाय अनिरुद्ध और बैंक कॉलम में 32,000। यहां तक क्लियर? यस सर। नाउ फ्रॉम देयर पोस्टिंग शुड हैव बीन डन वेयर? Anirudh's account. विच साइड? Debit side. बट एरर क्या हो गया? इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्टिंग हुई नहीं। इसका मतलब उसका अकाउंट 32,000 से डेबिट करना था लेकिन नहीं किया। सो व्हाट टू डू नाउ? सर अनिरुद्ध को डेबिट कर देंगे एंड वी विल क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज नो अदर अकाउंट इज इन्वॉल्व। एक्सीलेंट, यस।
Anirudh, debit 32,000. To suspense account 32,000. Rectification of omission of posting. Clear? Yes, sir. Written. Sir, इसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में कैसे जाएगी? sir, on credit side by writing by Anirudh 32,000. वेरी गुड, लिख लो. Sir, written. Good. Next one. Building sold for rupees 20 lakh credited to building account. तो इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे होनी चाहिए थी? Sir, journal. बिल्डिंग सोल्ड फॉर 20 लाख. पार्टी का नाम तो दिया नहीं हुआ, इसका मतलब कैश में सेल करी है. तो कैश Cash बुक में रिसीट साइड पे आना चाहिए था टू बिल्डिंग, और वहां से लेजर पोस्टिंग कैसे होनी थी इसकी? Sir, building account credit side. और हुआ क्या है? Sir, वही हुआ है. तो फिर एरर क्या है? Sir, कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है. यस. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. कई बार क्वेश्चन में आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए जानबूझ के कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस दिए हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में, वेयर देयर इज नो एरर एट ऑल. तो उस केस में सोच में नहीं पड़ जाना कि इसमें ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ. उसमें आपका आंसर क्या है? आपने जर्नल में ही पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख देना है नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. ठीक है? उस एरर का नंबर डाल के या उस ट्रांजैक्शन का नंबर डाल के आपने पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख देना है नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. क्लियर? Yes, sir. लिख लो. Sir, written. पढ़ो नेक्स्ट. Goods costing rupees 36,000 returned by Sachin, debited to his account 63,000. इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे हुई होगी? Sir, sales return. वेरी गुड. सेल्स रिटर्न बुक में. ठीक है, क्योंकि रिटर्न्ड बाय सचिन है तो इसका मतलब सचिन ने रिटर्न किए हैं, तो वो कस्टमर होगा. तो सेल्स रिटर्न बुक में सचिन लिख के 36,000. एरर हुआ है डेबिटिंग में यानी लेजर पोस्टिंग में. रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ फ्रॉम सेल्स बुक दिस शुड हैव बीन पोस्टेड इन लेजर. हाउ? Sir, in Sachin's account on credit side. On in Sachin's account on credit side, how much? 36,000. But what has actually happened? Sir, his account has been debited with 63,000. मतलब साइड भी गलत और अमाउंट भी गलत. तो हमें जो क्रेडिट में 36,000 आना चाहिए था उसका इफेक्ट भी डालना है, और डेबिट में जो 63,000 गलत आ गया है उसका इफेक्ट कैंसिल भी करना है. तो अब इसे टोटल कितने अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा? Sir, 99,000. वेरी गुड. तो 99,000 से हमने सचिन को क्रेडिट करना है. इज एनी अदर अकाउंट अफेक्टेड? No, sir. So, suspense account will be debited. Yes, absolutely. So suspense account debit to Sachin
99,000 रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर पोस्टिंग, और इसमें आगे ऐड कर लेना ऑन रॉन्ग साइड, रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। या इसमें ये मत लिखो, इसमें भी बेटर है आप वही वाली नरेशन लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। ठीक है, ये गलत नरेशन लिखी हुई है मैंने बाय मिस्टेक इसकी, ये मत लिखना, इसकी जगह लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। Sir, written. How will this be posted in the suspense account? Sir, on debit side by writing to Sachin 99,000. वेरी गुड, लिख लो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड टू सचिन 99,000। Sir, written. Read the last one. 36,000 rupees wages paid for making office furniture debited to furniture account. तो कहां पर एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? The cash book. Which side? Credit side by writing buy furniture account. और वहां से लेजर पोस्टिंग? Furniture account on debit side. तो फर्नीचर टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, बिकॉज वेजेस हैव बीन पेड बट फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, और एंट्री हुई भी वही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सो व्हाट टू डू नाउ? So we will write no rectification required in particulars column. Exactly. No rectification required. लिख लो। Excuse me, sir. Yes. सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जैसे एक पार्ट दे रखा है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 व पोस्टेड एज ₹9,000। तो सर यहाँ पे पोस्टेड लिखा हुआ है, तो सर मतलब वो सेल्स अकाउंट में भी जाएंगे और मोहन के अकाउंट में भी? नहीं, जहां पे भी मैंने आपको बताया था पोस्टेड लिखा है या डेबिटेड या क्रेडिटेड लिखा है, तो मतलब वो वन साइडेड एरर है, सिर्फ एक अकाउंट में। ठीक है, आप दोबारा से बोलो जरा, ट्रांजैक्शन क्या बोल रही हो? एरर। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 व पोस्टेड एज ₹9,000। हाँ, तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुई होगी? सर सेल्स बुक। सेल्स बुक में एज 7,000 है ना, 7,000 की थी ना? यस सर। वहां से लेजर पोस्टिंग कहां पर जानी थी? सर मोहन के अकाउंट में। विच साइड? सर ऑन डेबिट साइड। डेबिट है ना, साइड। तो वो रिसीवर है, कस्टमर है, तो मोहन के अकाउंट में डेबिट में 7,000 जाना था, लेकिन पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है ना, मतलब उसके अकाउंट में पोस्ट करते हुए गलती हुई है, तो मोहन के अकाउंट में 7,000 की जगह 9,000 डेबिट हो गया है, ज्यादा डेबिट हो गया है, तो अब उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और डेबिट कर देंगे सस्पेंस को। सर लेकिन हम सेल्स अकाउंट भी तो बनाते हैं लेजर के टाइम पे, वहां पे भी तो सारी टोटलिंग जाती है। बिल्कुल जाती है, लेकिन सेल्स में कौन सा अमाउंट जाता है? सेल्स में अमाउंट जाता है सेल्स बुक का टोटल। ओके सर, समझ आ गया। सेल्स बुक का टोटल जाता है ना, और सेल्स बुक के टोटल में कोई मिस्टेक है नहीं, क्योंकि सेल्स बुक में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है? यस सर, ओके सर, थैंक यू। यस मेहुल। सर बिल वाली रेक्टिफाइड एंट्री आएगी? कौन सी बिल वाली? जैसे बिल फॉर 800 रुपीज फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वाज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक
as 700. यस बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। एक मिनट, ये क्वेश्चन कंप्लीट करें पहले, फिर आपकी उस पे आते हैं क्वेरी पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है बीच में सर। अटका हुआ है, पहले इसे एक बार कंप्लीट कर लें। सस्पेंस अकाउंट, अब देखो एंट्रीज हमारी सारी हो गई जर्नल में, सस्पेंस में पोस्टिंग भी हो गई सबकी। अब सस्पेंस अकाउंट आपका देखो, डेबिट साइड पर 3 अमाउंट्स हैं, 20,000, 2,000, 99,000। इनका टोटल करो कितना आ रहा है। 1,21,000। यस। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट हुआ 65,000, उसके बाद +3 68 हो गया, +21 89, +32 कितना हुआ। सर सेम 1,21,000। यस सेम आ गया। क्यों सेम आ गया? बिकॉज ऑल द एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड एंड आई टोल्ड यू, अगर सारे एरर रेक्टिफाई हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अगर इसमें कुछ बैलेंस बच रहा होता तो हम बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर देते, और उसका मतलब ये होता कि अभी भी कुछ एरर्स रेक्टिफाई होने रहते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये सस्पेंस अकाउंट की टोटलिंग लिख लो पहले, दोनों साइड पे टोटल लिख लो। सर रिटर्न। हाँ मेहुल, अब बताओ आपकी क्या क्वेरी थी, ट्रांजैक्शन पढ़ो वो क्या है। सर इसकी एंट्री क्या होगी? ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा पहले। Bill for rupees 800 received from Mukesh for repair एक of मिनट, machinery. स्लोली। बिल ऑफ ₹800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, आगे। For repair of machinery फॉर रिपेयर was ऑफ मशीनरी, आगे। entered in the purchases book as 700. फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज 700, है ना, यही है ना। Yes sir. Yes ओके, sir. तो अब आप बताओ, 800 हमने मुकेश से बिल मिला है, मतलब अमाउंट उसे पे करना है हमने। बिल मिला है मतलब हमने उससे मशीनरी की रिपेयर, उसने हमें बिल दिया है किस चीज का, मशीनरी की रिपेयर का। इसका मतलब रिपेयर एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया। तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, आप पहले ये बताओ। Repair to Mukesh. वेरी गुड, रिपेयर टू मुकेश, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। रिपेयर टू मुकेश, हाउ मच, 800, 800. है ना। एक मिनट रुको, लिखते हैं इसे। यस, एंट्री होनी चाहिए आपकी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश, है ना, Yes sir. और दोनों के आगे अमाउंट 800। ठीक है, अब बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से। Was entered in the purchase book. तो परचेज purchases to बुक, Mukesh. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना, 700. 700। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 700, ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 800. और डेबिट कर देते हैं। ठीक है, मुकेश क्रेडिट होना चाहिए था 800 से, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ है, 700 to 100 से तो उसे क्रेडिट कर दी। 100 और क्रेडिट करना है। ठीक है, तो टू मुकेश 100, यहां तक समझ में आया मेहुल। Yes sir. Yes sir. अब देखो कौन सा अकाउंट बचा, परचेजेस। परचेजेस में एज पर द करेक्ट एंट्री कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन परचेजेस गलती से डेबिट हो गया है 700 से, सो व्हाट टू डू नाउ।
Credit credit 700. वी विल क्रेडिट इट, गलती से डेबिट हो गया है तो उसे क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट 700। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके सर। सर और एक और डाउट है, हाँ बोलो। इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? परचेजेस ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ? सर हमने एंट्री ही नहीं की। एंट्री नहीं डाली। यस, एंट्री नहीं डाली तो अब डाल देंगे। क्या एंट्री होनी चाहिए थी उसकी? सर लेकिन उसके आगे रिकॉर्डेड भी लिख रखा है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड मतलब मिस हो गई, रिकॉर्डेड Yes, sir. मतलब रिकॉर्ड करना मिस हो गया, यानी एंट्री हुई ही नहीं। ठीक है, तो अब वो एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? Purchases to suspense. To सस्पेंस cash. नहीं, सस्पेंस क्यों? दोबारा पढ़ो सर ट्रांजैक्शन। लेकिन क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है? परचेजेस purchases of 10,000 was omitted to be recorded. ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड नहीं हुई तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता ना। रिकॉर्डेड मतलब ओरिजिनल एंट्री में ही गड़बड़ है, तो ना डेबिट हुआ है लेकिन ना क्रेडिट हुआ है। तो इसको आप कर दो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, परचेजेस टू क्रेडिटर हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ सर पे क्रेडिटर का नाम नहीं है तो कैश अकाउंट नहीं होना चाहिए क्रेडिट। यस, वो बेटर है। परचेजेस टू कैश कर दो, क्योंकि नाम भी नहीं दिया हुआ और पेमेंट हुई है या नहीं मेंशन नहीं है, तो बेटर टू राइट कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर। सो रेक्टिफाइंग एंट्री बिकम्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। sir, but it is not mentioned that the payment was made through cash. जब हमें पार्टी का नाम दिया होता है लेकिन पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया होता, तब हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार पे मानते हैं। बाकी सब केसेस में हम उसे कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। Okay, sir. ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. Thank you. Anyone else having any doubt? Okay, we stop here for today. अब नहीं नहीं, एक मिनट रुको, अभी स्टॉप नहीं कर रहे। एक मिनट रुको, एक चीज रह गई बतानी। अगर डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का जो सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट किया था, इफ दैट इज नॉट गिवन, द बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट शुड बी टेकन एज द डिफरेंस। सपोज इसमें हमें ये 65,000 नहीं दिया होता, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर यही आती है ना। यस और नो? यस सर। शुरू में अगर हमें डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता, तो बाकी सब अमाउंट्स डालने के बाद क्रेडिट साइड पे हमारी बैलेंसिंग फिगर ही आती, तो उसे हम लिख देते बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब शुरू में ये रहा होगा डिफरेंस। इज इट क्लियर? यस सर। If the difference of trial balance which was posted to suspense account is given and still suspense account shows a balance, it means some errors still remain. Clear? यस सर। So this chapter is complete now. You will attempt all the remaining questions from the book now. Okay? ओके सर। Thank you. थैंक यू सर।